So, hello everyone, I'm Shivani from Doctor, and today we have Dr. Sohail Makhwana with us, the famous viral doctor. And being a doctor, he's also a filmmaker, writer, and photographer. So, we'll ask from himself on tell me something about yourself, sir. Thank you so much, Doctor, for inviting me in this beautiful podcast, and I'm really glad to be here in front of you. Thank you so much, Shivani. And talking about myself, so I'm a Dr. Sohil Makwana. I'm a MBBS MD. I'm working in government sector from last couple of years, and besides being doctor, I have transformed myself in other activities like uh, I've been fashion photographer. I've been author of 3 novels, the viral doctor in COVID. I worked in one film as an assistant director, and I'm pursuing my passion into filmmaking ahead. And yeah, those are my journey. And if you describe in brief, then this is Dr. Sohail Makwana. So far, I'm not sure what's going ahead. I just live my life this way. Okay, so tell me something about your journey as a doctor. Okay, so again, इंडिया में मोस्टली दो चीज बहुत कॉमन है. आइदर यू वांट टू बिकम अ हीरो इन अ फिल्म और यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर. Doctor. तो मैं जब छोटा था तो मेरे दिमाग में दोनों चीज थी. आई वांटेड टू बिकम एक्टर एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर. बट आई हैड नो बैकग्राउंड अबाउट ये फिल्म इंडस्ट्री एंड I was good in studies, so I got good marks in 10th and 12th, and I believe I'm showered with blessings. Like I always desire something, and God has given me with open hands. So I desired for medicine. I got my MBBS admission. I've done my graduation from Baroda Medical College, SSG Hospital. I stayed over there for 6 years, 6.5 years. And then I started preparing for my post-graduation examination. Though it was tough and difficult because around 1 lakh doctors, more than 1 lakh doctors appear in that exam. And at that time, the seats were around 3,500 somewhere. So I was unable to secure my seat in during the first counseling. But successively on my third attempt, I secured MD. For MD entrance. So entrance is difficult. And MD once you are के into MD, then it's not and MBBS के लिए कितने attempts करने पड़े? MBBS to first attempt. First attempt में हो Yes, गया था. MBBS entry. उस time AIPMT था. चल No, I've secured my admission through Gujarat गुजरात में. board and Gujarat state counseling. We are lucky at that time कि मिल जाता था. Still, it's same process. I think around 15% are reserved from all India entrance. But my MD, I have secured through all India quotas because there are around 3,500 seats, and the examination pattern was alluring to me. Like they were asking questions in brief, and I was expert in that cracking that kind of question. So I prefer that way, and I got around 860 rank all over India. Oh, that's I very was nice. getting a number of branches, but my choice was different, and that's why I choose pharmacology as my branch, Okay. MD pharmacology, and I became a doctor. This is my journey. But again, I'm saying I'm always blessed with a shower of the God की जो भी चाहा always मिला sooner or later. Pharmacology actually बहुत tough होता है. Tough तो सब कुछ है. Nothing is easy. I believe every branch is difficult. Everything is difficult. Nothing is easier. कोई भी चीज पे अगर टॉप पे हो तो ही इसकी वैल्यू है. Otherwise, either arts हो, science हो, commerce हो. हाँ, of course. चार्टर्ड अकाउंट लाइक तो सीए इज आल्सो डिफिकल्ट. सीए में क्या होता है कि पास होना डिफिकल्ट है. सो सीए बनना लाइक मेडिसिन इज लाइक एंट्री इज डिफिकल्ट. वंस यू आर इन एमडी देन यू डेफिनेटली गोना बी डॉक्टर. सो अगर ड्यूरेशन देखे सीए और डॉक्टर का तो दोनों का सेम ही होता है. देयर आर नंबर ऑफ सीएस. कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं. देयर आर नंबर ऑफ डॉक्टर्स. कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ठीक ठाक होते हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग होते हैं. सो ऑलवेज कोई भी फील्ड में अगर जाओ तो जो टॉप पे है दे आर अर्निंग इन millions. Like this is the ways I believe. Okay, so what about the viral photo story जो कोविड के टाइम पे हुआ था? ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था. वो बहुत वायरल हुआ था. The photograph had around 4 billion impressions all over world.
4 billion. Because उस टाइम पे सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी, लाइक अराउंड अप्रैल एंड 2021 second pandemic was on the peak. A number of deaths were happening around yeah. every day. So the worst phase of COVID was April last week, and I was posted in the same time in the COVID wards, emergency duties में number of death I have seen. So at that time, you know, लोग बहुत डरे हुए थे. बहुत ज़्यादा. So when you become viral, when public can correlate themselves with your situation, when their sentiments are higher. So it was a situation, and I had uploaded a photograph of mine on Facebook कि डॉक्टर की हालत क्या है. Like, 10 उसमें बहुत घंटे difficult था. 10 घंटे पीपी किट पहनने के बाद गर्मी में विदाउट एसी, तो मैंने एक बिफोर आफ्टर का फोटो रखा था कि ये मैं हूं, और 10 घंटे के बाद I had uploaded a photograph. Within few days, 2 days, it became internationally viral. I have given interview in Turkey, Egypt, Norway, Australian Times, New York Times. Recently, I got a photograph of mine in some unknown language. Even I cannot think कौन सी language है. It was Cyprus time, तो Latin Greek ऐसा कुछ language होगा. तो it was, क्योंकि पूरी दुनिया में कोविड का कहर बहुत ज़्यादा था था उस टाइम. एंड एवरीवन जो लोग थे वो फील कर रहे थे कि उनकी कंट्रीज के जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनकी क्या हालत है. सो आई एम प्राउड कि आई हैड रिप्रेजेंटेड द हेल्थ केयर वर्कर्स अक्रॉस द ग्लोब, एंड रियली इट वर्क. लोगों को पता भी चला, एंड इट वाज नेसेसरी एज वेल एट दैट टाइम. एंड रियली इट वर्क. लोगों को पता भी चला, एंड इट वाज नेसेसरी एज वेल एट दैट टाइम. So this was journey of viral doctor, and they have given this name, the Yeah, viral like doctor. you Yeah. are like famous with the viral doctor हाँ, तो tag. द वायरल डॉक्टर का टैग है. अगर आप गूगल करोगे द वायरल डॉक्टर तो मेरी बहुत Yes, सारी. I had searched. हाँ, तो वो ये मुझे like आपका मैं कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी टैग होता है, द वायरल डॉक्टर. इट हैपेंस. आई टोल्ड यू ना कि कोई प्राउड लेने की बात नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल हैव डाइड. मैंने उस टाइम भी वही इंटरव्यू में कहा था कि इट्स नॉट अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन के यू आर बीइंग वायरल. तो क्योंकि आई हैव सीन अ नंबर ऑफ डेथ्स अनबिलीवेबल, बहुत ही. और मैं अकेला नहीं, सारे के सारे डॉक्टर्स अपनी ओर से कोशिश कर रहे थे, एवरीवन. और टेरिफिक टाइम, critical situation था उस time. टेरिफिक टाइम. So like what do you think about the stigma of the doctors being studious all the time? स्टूडियस डॉक्टर. हाँ, लोगों को तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स आर स्टूडियस, बट आई डोंट थिंक सो. वी ऑलवेज टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एंजॉयमेंट. ऐसा नहीं है. हर एक कॉलेज में बहुत सारे डेज भी सेलिब्रेट होते हैं. हमारे यूथ फेस्टिवल्स होते थे. तो स्टूडियस, हाँ, व्हेन द एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग यू नीड टू गिव योर 100%, एंड सिलेबस इज समथिंग, क्या बोलते हैं, जो इम्पॉसिबल है. हाँ, कंप्लीट करना इज इम्पॉसिबल. बट व्हाट मैटर्स, एक तो डिसिप्लिन. तो हम लोगों को एक चीज सिखाई जाती है कि यू डोंट नीड टू एंजॉय इन डेज, यू डोंट, और वीक्स में तो कभी मत करो. यू एंजॉय इन आवर्स, कि रोज 2 घंटे एंजॉय करो. इफ यू एंजॉय फॉर मंथ्स तो फिर वो कभी रिकवर नहीं होगा. तो वी आर हैबिचुएट विद दिस पैटर्न. और वो जो डिसिप्लिन सीखी है ना, वो अभी भी काम है. और इवेंचुअली सब सीख जाते, कोई सिखाता नहीं है, लेकिन प्रेशर इतना होता है कि यार ये सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्या होगा. The same thing happens with my brother also. अच्छा, your brother, he is a doctor. अरे वाह. तो चीजें यही है. और कहीं ना कहीं तो पढ़ना पड़ता है. अगर एमबीबीएस में नहीं पढ़ा, पास हो गए पासिंग मार्क से, लेकिन आपको पीजी करना है, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट की एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती है उसमें पढ़ना पड़ेगा. सो देयर इज नो अदर एस्केप रूट. यू नीड टू रीड आइदर फ्रॉम द बिगिनिंग और एट द एंड. लाइक अगर आपको 300 रन बनाने हैं तो आपको पहले से रन रेट मेंटेन करनी है, या फिर स्लो ओवर्स में मारना है, लेकिन बनाने तो पड़ेगा, अदरवाइज यू विल लूज. सो दिस इज द फंडामेंटल. बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. यस, तो वही मैंने कहा, बर्डन ना पड़े, लोड ना हो ज्यादा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि डिसिप्लिन एंड एंजॉय इन आवर्स, ये मेरा फंडा है ऑलवेज, आज भी यही है. हाउ यू मैनेज योर टाइम, लाइक प्रैक्टिस भी और फिर लाइक जो भी आपके
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, तो हाउ यू मैनेज? मैंने पहले भी कहा डिसिप्लिन, तो ये जो चीजें हैं ना वो ओवरनाइट नहीं हुई. लाइक आई वाज फैशन फोटोग्राफर, तो मैंने वो चीज सीखी. मुझे फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था पहले से. लाइक व्हेन आई वाज इन एमबीबीएस आई हैड बॉट अ डिजिटल कैमरा एंड आई यूज्ड टू फोटोग्राफ गार्डन में जाके बर्ड्स के फोटोग्राफ, सम फ्रेंड्स वगैरह के फोटोग्राफ्स. So gradually I'm a self learner. So gradually I used to read on Google articles, books, etc., etc. I've never seen any, I've never assisted any photographer. But मुझे पता चला composition क्या होती है, shadows क्या होते हैं, aperture क्या है, लेंस कौन से, वाइड एंगल क्या है, जूम लेंस क्या है, एवरीथिंग आई ग्रेजुअली और सीखता गया. फिर फैशन इंडस्ट्री में मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट लगा, तो आई यूज्ड टू एक्सप्लोर नंबर ऑफ फोटोग्राफर्स की उनकी क्या लाइटिंग्स होती है, और फिर उनकी फिगर्स वगैरह, इमेजेस वगैरह देखता था. तो ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लर्निंग अ फोटोग्राफी. तो ये कोई ओवरनाइट चीजें नहीं है. यू लर्न एवरीथिंग स्लोली ग्रेजुअली, और वो रोज 1 घंटा जो होता है ना, वो धीरे 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 कंपाइल होकर गिव समथिंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स. सो मेरा फोटोग्राफी फिर अच्छी चलने लगी. एंड मेरे फेमिना में भी 3 बार एडिटोरियल्स आए थे, 6 पेजेस जो बड़े वाला होता है. एचएमएफ में भी मेरा इंटरव्यू आया था, और भी है. फिर यहीं पे सामने ही मेरा होर्डिंग लगा था, एक फैशन डिजाइनर का मैंने शूट किया था. ये कॉर्नर पे ही है, ओवरब्रिज है ना, तब ओवरब्रिज नहीं था. Okay. ये कॉर्नर अराउंड पकवान क्रॉस रोड. नंबर ऑफ वो कैटलॉग्स जो ड्रेस मटेरियल्स के, साड़ीज के. सो बट आई वाज कि लाइक मुझे वेडिंग फोटोग्राफी नहीं करनी, बिकॉज मुझे समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना था. एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी कि वंस अ मंथ शूट करना, क्योंकि वो क्लाइंट को भी मॉनेटरी टर्म्स में नहीं हो रहा था, एंड मेरा भी बजट हो रहा था. उस टाइम पे मेरा इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग की ओर चला गया धीरे धीरे. सो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट डायरेक्शन. लेकिन मैं मेरा जो प्रोफेशन है उसको छोड़ना नहीं चाहता था. दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि एक राइटर होता है वो कहीं पे भी बैठ के लिख सकता है, राइट, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है. देन आई स्टार्टेड स्क्रीन राइटिंग, फिल्म लिखना शुरू किया. कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो सर्च करा. अगेन सेल्फ लर्नर. एंड ग्रेजुअली मैंने लिखी फिल्म्स वगैरह. फिर अगेन लिखने से कुछ नहीं होता ना, यू नीड टू मीट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अगेन यू कीप अराउंड एंड फॉलोइंग. फिर कोविड आ गया तो सब बंद. तो मैंने सोचा कि अब किसी के पीछे जाना नहीं है. आई ट्रांसफॉर्म माई वेब सीरीज इनटू नॉवेल, जो 2 भाग की नॉवेल है. वो 2 सीजन वेब सीरीज लिखी थी. नेम इज मर्डरम, फोरेंसिक क्राइम थ्रिलर है, और इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. एंड इट वर्कड. पीपल, लॉट मोर देन 50,000 रीडर्स हैव रेड, एंड इट इज बीइंग ट्रांसलेटेड एज वेल. अभी रिलीज हुआ है गुजराती में भी, हिंदी में ट्रांसलेशन चालू है. फिर तीसरी नॉवेल रिलीज करी. तो थिंग्स आर, तो ये ओवरनाइट चीज नहीं है. तो आज भी मैं, yesterday I was occupied, right? तो घर पे जाके मैंने 2 सीन तो लिखे ही लिखे, because it's my passion and I find my time accordingly. केयर. और राइटर जो होते हैं ना, ऑथर्स होते हैं, उनके दिमाग में चीजें चलती रहती है. और राइटर्स जो होते हैं ना, वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं लेते, और उन इंट्रोवर्ट इसलिए होते हैं कि वो अपनी दुनिया में जी रहे होते हैं विदाउट ये वीड वगैरह. विदाउट वीड उनके दिमाग में सब कुछ चलता रहता है. इमेजिनेशन रहती है. आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे दिमाग में वही चलता होता है कि यार ये ऐसे कर सकते, ऐसे कर सकते, ऐसे कर सकते हैं. तो दैट्स हाउ अ राइटर बिकम्स इंट्रोवर्ट, क्योंकि और वो ऑब्जर्व करता रहता है ऑथर जो होता है. But I don't think that you are introvert. नहीं, मैं सिलेक्टिव इंसान हूँ, सिलेक्टिव इंट्रोवर्ट. हमें बातें कर लेता हूँ ऐसी, लेकिन अगर कोई गॉसिप वगैरह कर रहा है, कोई जो मुझे इंटरेस्ट नहीं कर रही है, मुझे इंटरव्यू नहीं कर रही, उस टाइप की चीजें, तो मैं ट्रांस में चला जाता हूँ मेरे. तो प्रोडक्टिव थिंकिंग, प्रोडक्टिव टॉकिंग, दिस इज फंडामेंटल. तो बस ये ग्रेजुअल, कोई भी चीज, आज कोई भी डॉक्टर ओवरनाइट नहीं बन पाता, राइट? सो एवरीथिंग्स बिल्ड अप विद बिट्स एंड पीसेस, दिस इज फंडामेंटल. तो मेरा टाइम मैनेजमेंट यही है कि जो भी चीज करो डिसिप्लिन के साथ करो. और बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो राइटर बनना चाहते हैं, राइटर तो नहीं बोल सकते, एस्पायरिंग राइटर्स, लेकिन वो बोलते हैं लिख नहीं पाता. बट इफ यू वांट टू बिकम एन ऑथर, 1 लाइन लिखो रोज, 1 लाइन का 1 पैराग्राफ करो, 1 पैराग्राफ से 1 पेज बनो, 1 पेज का 1 चैप्टर बनो.
लेकिन अगर आप बोलोगे टाइम ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा. So, टाइम start. निकालना पड़ता है चीज के तो राइटिंग चीज क्या है पता है, हम सबसे पहले दुनिया में आके क्या सीखते हैं, इमेजिनेशंस, एग्जैक्टली. राइट. मेडिकल तो बाद में है 12th स्टैंडर्ड के बाद. सो एनीवन कैन राइट एनीथिंग. बस एक जो फोबिया है कि यार नहीं यार इट्स राइटर, यार इट्स राइटर इज नॉट दैट बिग. लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो लिखना बहुत इजी है और उसको रिलीज करना बहुत डिफिकल्ट है, और उसको लोगों तक पहुंचाना मोर डिफिकल्ट. जब मार्केटिंग की बात आती है, दे रिक्वायर्स मुल्ला मनी. तो राइटिंग इज इजी, रिलीजिंग इज डिफिकल्ट. ये अब लाइक एक और बुक थी वुमनिया, वो हाँ वंडर वुमनिया. वंडर वुमनिया, तो हाँ वो इस साल रिलीज किया था 2023 में ही. और इट्स अ टची सब्जेक्ट. मैं सब्जेक्ट थोड़ा एलाबोरेट करूंगा यहाँ पे. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ स्टैंड अप कॉमेडियन. एक लड़की की कहानी है एंड उसे मतलब शी इज हैप्पी गो लकी. शी बिलीव्स इन 3 थिंग्स: मीम्स, मोमोज, मुन्नास. उसको मीम्स पसंद है. शी इज स्टैंड अप कॉमेडियन. शी लव्स मोमो. मोमोज बहुत कम लोगों को पसंद होता है, लड़कियों को होता है. शी लव्स मोमोज. एंड थर्ड इज मुन्नास. शी वांट्स टू हैव मल्टीपल किड्स. उसकी ड्रीम है ये. लेकिन उसकी लाइफ में एक उथल पुथल हो जाती है एंड शी फेसेस अ वेरी रेयर डिसीज जो बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है. आई राइट मेडिकल फिक्शंस. मैं जो लिखता हूँ वो कैरेक्टर ह्यूमर के साथ ऐसे मोल्ड करता हूँ. इसमें जो बिजार डिसीज है जो डॉक्टर लोगों को भी नहीं पता, बहुत ही कम होती है. 1 in trillion केसेस सम सॉर्ट ऑफ, जो सिर्फ थियोरेटिकल कहीं लिखा हो, एक केस 100 साल में हुआ हो, ऐसी चीजों को मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ. तो उसको भी एक बीमारी हो जाती है एंड शी फेसेस अ सोशल स्टिग्मा बिकॉज ऑफ दैट बीमारी. बट शी इज अ फाइटर. शी ग्रेजुअली फाइट सोसाइटी, बाउंसेस बैक and serves the mankind because of her disease. Okay. And at the end of 10 years, she becomes the woman of the decade. तो एक वंडर वुमनिया एक लड़की की कहानी है. और मुझे रात को 2 बजे मैसेजेस आते हैं लड़कियों के, आई एम लाफिंग एंड क्राइंग साइमल्टेनियसली. एंड नंबर ऑफ रीडर्स, क्योंकि एक फीमेल, इट्स नॉट इजी टू बिकम वुमन. Exactly. मैं ये बार बार कहता हूँ, मेरे काफी इंटरव्यू में मैंने कहा, इट्स नॉट इजी टू बिकम वुमन. एक बार लड़की के पैर में, आप लड़की के शूज में झाके देखो, पता चलेगा इट्स नॉट इजी टू बिकम वुमन. बिकॉज माय मदर, लाइक माय फादर इज रिटायर्ड बट माय मदर विल नेवर रिटायर. माँ रिटायर कभी नहीं होती. फीमेल पहले क्या था दुनिया में कि लड़की हाउसवाइफ थी, राइट. फिर नया जमाना आया, लड़कियां बनी कॉर्पोरेट वुमन. तो आजकल लड़कियां कॉर्पोरेट वुमन है और घर के जाके हाउस वाइफ है. सो अभी उन लोगों ने डबल प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया खुद के लिए ही. बट इट्स नॉट इजी टू बी. मेरी जो स्टोरीज होती है ना मोस्टली विमेन सेंट्रिक होती है. अभी 3 जो रिलीज की है वो तो विमेन सेंट्रिक ही होती है. तो वंडर वुमन या एक वंडरफुल विमेन की कहानी है कि हाउ शी बिकम्स अ गॉडेस इन मॉडर्न एरा. और ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है. उनकी कोई छुट्टी नहीं होती, उनका संडे भी वर्किंग होता है. कोई छुट्टी नहीं होती. It's not easy to become a woman. Like a pregnancy, childbearing phase, every monthly blue singings होते हैं. This is not cup of tea. It's very tough. Yeah, it's really tough. तो वंडर वुमन ये थी. अभी नेक्स्ट वीक लिख रहा हूँ और भी वो वुमेन रोटेड नहीं है, उसमें तो थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है. साइकोलॉजिकल थ्रिलर है. नेक्स्ट वन इज Okay, so what do you prefer, like inside the clinic or like versus books or movies? आपको कहाँ ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं. Or you balance it both? No, I'm doctor and I will be doctor always. अगर मैं, मेरी जो भी आइडेंटिटी है, it's because of my profession, because of my knowledge. और मैं मेरे नॉलेज को ही इनकॉर्पोरेट करता हूँ मेरे सब्जेक्ट्स, मेरी बुक्स वगैरह में. और जो मैंने एक फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है. इस मराठी फिल्म नेम एस बली. और वो एक हॉस्पिटल बेस्ड हॉरर फिल्म थी और उनको एक डॉक्टर ही चाहिए था जो ऑथर हो. तो स्पेशली दे आस्क्ड मी कि यू कैन कम. तो मैंने कहा, मैं 1 महीने की छुट्टी लेके वहां गया था एंड आई स्टेड. तो बिकॉज ऑफ डॉक्टर आई वाज देयर. अदरवाइज तो मेरी जो भी चीज है वो बिकॉज ऑफ माई नॉलेज, बिकॉज ऑफ माई मेडिसिन. सो आई एम प्राउड बीइंग अ डॉक्टर फर्स्ट. बट यस, मैं उसके बाद का जो फेज है मैं वो भी एंजॉय करता हूँ. तो अगर आप मुझे पूछोगे कि आपकी चॉइस क्या है, तो मैं तो ऑलवेज फर्स्ट चॉइस पे रहूंगा. Like everything is related to your profession only. Yes.
direct someday if I get chance or if I have some resources, क्योंकि फोटोग्राफी तो आप अकेले कर सकते हो, नहीं मतलब फोटोग्राफी भी नहीं कर सकते, राइटिंग कर सकते हो, फोटोग्राफी में भी आपको बहुत सारी टीम चाहिए, यहाँ पे भी 2-3 लोग अभी देख रहे हैं, लाइक सो इट्स नॉट इजी टू बिकम फैशन फोटो, सोलो फोटो फैशन फोटोग्राफर नहीं होता, उसकी टीम होती है, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू यू नो मेंटल डिसमेंटल ऑल दिस इक्विपमेंट्स वगैरह, और फोटोग्राफर वहां फोकस करेगा या लाइटिंग पे फोकस करेगा या खुद जाके, मैंने वो भी किया है सोलो प्रोजेक्ट्स, मेरी कोई टीम नहीं थी, मैं खुद क्लिक करता था, फिर लाइट चेंज करता था, खुद क्लिक करा, क्योंकि मेरी टीम ही नहीं थी उस टाइम पे, और मुझे मतलब इकोनॉमिकली भी वो था नहीं, क्योंकि मैं लॉस में रह के कर रहा था, क्योंकि आई वाज पैशनेट, मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे, मॉर्निंग से स्टार्ट करके रात तक शूट करता था, और मैं खाना भी नहीं खाया पूरे दिन में, खाना तो ठीक, मैं वॉशरूम भी नहीं गया, ऐसे ऐसे मैंने शूट किया है बहुत। तो मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, मैं क्या क्वेश्चन हाँ वही था सर जो आप बोल रहे हो, कौन सा सही बेटर होता है, लाइक हाँ इनसाइड द क्लिनिक और हाँ, तो आई एंजॉय एवरीथिंग, कि मैं उसके बाद का फेज भी एंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो एक नई चीज करना चाहता हूँ ना। मतलब सब आपसे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है तो फिर यस यस यस, ऑफ बैलेंस कोर्स हो ऑफ जाता है कोर्स। वो सब। लाइक फॉर मेनी मेडिकल स्टूडेंट्स लाइक एमडी के बाद लाइक इट सीम्स टू बी अ लास्ट जर्नी फॉर देयर, बट आपके लिए इट्स लाइक बिगनिंग, तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? हाँ, हमारी यही प्रॉब्लम होती है कि आफ्टर सर्टेन इयर्स वी स्टॉप लर्निंग, आफ्टर 25-30 इयर्स, चलो आफ्टर 30 इयर्स वी स्टॉप लर्निंग, हम एमबीए बन गए, बस अब हम जॉब ही करेंगे, वी विल नॉट लर्न एनीथिंग न्यू, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, अगर आप लर्निंग स्टॉप कर दो ना, आपका ग्रोथ बंद हो जाएगा। सो जो भी चीज में आपको इंटरेस्ट हो, यू शुड, अगर एमबीए में भी आप मार्केटिंग में हो तो आप फिनेंस का नॉलेज लेके, शेयर मार्केट का नॉलेज लेके यू कैन अर्न नंबर ऑफ वेज, बट नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव सीन पीपल के वो कुछ बस सेटिस्फाइड, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शुड यू नो एक्सप्लोरिंग सर्टेन सब्जेक्ट जो आपको इंटरव्यू कर रहे हो। और मैं ये भी कहता हूँ कि आपकी लाइफ में एक चीज ऐसी पैशनेट होनी चाहिए जो आपको फ्रस्ट्रेशन से बचा पाए, अगर आपको एक चीज, एक हॉबी तो होनी चाहिए, आइदर आपको गिटार हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, या रंगोली बनाओ, व्हाटएवर, जो आपको सेटिस्फेक्शन दे, जो आपको फ्रस्ट्रेशन से बचा पाएगा, आपको टेबल टेनिस खेलना पसंद हो, आपको लॉन टेनिस पसंद हो, स्केटिंग, एनीथिंग, तो मैं ये फर्मली बिलीव करता हूँ ये सब चीज में। तो एमडी खत्म होने के बाद तो लोग वंडरिंग नहीं होते, आई बिलीव एमडी खत्म होने के बाद दे स्टार्ट वर्किंग, लेकिन अगर अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हो, देन यू नो यू शुड कीप लर्निंग समथिंग एंड यू शुड डेवलप पैरेलल हॉबी, पैरेलल पैशन, जो भी आपको पसंद हो। वंडरिंग मोस्टली एमबीबीएस के बाद लड़के होते हैं, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स हैव बीन इंक्रीज्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स आर लिमिटेड, सो रेशियो इज लाइक 1:20 और 1:30 समथिंग, तो एमबीबीएस कर लेते हैं लेकिन पीजी नहीं करने को मिलता है, एंड दे सी कि अब पीएचसी में या कहीं हॉस्पिटल में जॉब करना, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, लाइक मेडिकल राइटिंग, आई एम राइटर, दिस मेडिकल राइटिंग इज यू नो अनदर, तो क्योंकि फार्मा सेक्टर कभी भी रेसेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि इंसान जो है वो बीमार होता रहेगा, राइट, गायनेकोलॉजी चलता रहेगा, ऑर्थोपेडिक्स चलता रहेगा ऑलवेज, राइट, कैटरेक्ट होने वाला ये सबको आगे जाके, तो कभी भी हेल्थ सेक्टर डाउन नहीं जाने वाला, चाहे कितना भी बड़ा रेसेशन आए, रेसेशन तो कोई बढ़िया नहीं होता, लेकिन चाहे कितना भी खराब रेसेशन आए, तो इस सिचुएशन में फार्मा सेक्टर को डॉक्टर्स की जरूरत तो है ही। अब वो लोग तो नहीं लिख पाएंगे कि भाई प्रोसोपो मेटामॉर्फोप्सिया पे लिखो, नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे, वो है प्रोसोपो मेटामॉर्फोप्सिया क्या है, तो वो डॉक्टर को ही बताया कि वो क्या है, तो दे विल हायर यू, तो एक वो प्रोफेशन है। फार्मा सेक्टर्स में बहुत सीआरओज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और बायोफिजिक्स में भी अपॉर्चुनिटीज है, तो और मेरी तरह, लेकिन डायरेक्ट ऑथर मत बन जाना, ऑथर को बहुत स्ट्रगल होती है, दे आर वंडरिंग, बट इफ दे यू नो थिंक लॉजिकली एंड दे कैन फाइंड अल्टरनेटिव्स, एमबीए भी होता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में अगर डॉक्टर है अगर मैनेज कर रहा है तो, और यूपीएससी फैंटास्टिक, क्योंकि जो नॉलेज डॉक्टर का तो है ही, एंड दे आर इंटेलिजेंट एज वेल, सो अगर कोई एमबीबीएस स्टूडेंट है 2 साल यूपीएससी में देगा, 3 साल यूपीएससी में देगा, तो ही विल डेफिनेटली करेगा, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बनता है, आई हैव सीन माय जूनियर्स वर्किंग एज अ आईपीएस,
Okay. So a number of doctors now appear in UPSC examinations and they start working as highly gazetted officers. So अभी तक ऐसा नहीं था डॉक्टर बन जाओ, बट अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि एक सिंपल फंडामेंटल है कि एक डॉक्टर बना लड़का जो होता है, तो वो लड़का अपनी जो क्लास में मोस्टली इंटेलिजेंट तो होगा ही, अगर आईक्यू वाइज देखे तो उसके चांसेस अगर यूपीएससी क्रिएट करने, दो और चीजें, एक इंटेलिजेंट होता है वो थोड़ी कम मेहनत करके स्मार्टली काम करके क्रैक कर सकता है, और दूसरा होता है हार्ड वर्कर। मैं ये नहीं कहता कि कॉमर्स वाले या आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं क्रैक पाते, अगर वो डिसिप्लिन के साथ काम करेगा तो डेफिनेटली क्रैक, और वही लोग क्रैक कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव है नहीं। जब रास्ता बंद हो जाता है तो इंसान अपनी पूरी ताकत लगाता है, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू। अगर यूपी बिहार में देखो तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज कम है, क्योंकि वहां पे बिजनेस भी इतना डेवलपमेंट नहीं है ना। यहाँ गुजरात में क्या है कि वी हैव नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, यूपी बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, नहीं वहाँ पे तो क्या करेंगे? मेडिकल कॉलेजेस भी इतनी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो वो लोग सोचते हैं कि भाई वी आर नो दैट काइंड ऑफ पीपल कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए हमें, तो गवर्नमेंट जॉब अगर ऐसी करनी है इससे अच्छा तो यूपीएससी क्रिएट ना, तो उनके दिमाग में वही चीज होती है एंड दे वर्क हार्ड रियली वेल। ज्यादा That's why. मोस्टली यूपी बिहार के साइड लोग वाले Yes, yes, यूपीएससी yes. क्रैक करते क्योंकि हैं। वहां पे रास्ता बंद हो रहा है ना, जब रास्ता बंद होता है तो डेस्परेट एफर्ट्स आते हैं एंड दैट्स व्हाई। तो ये फंडामेंटल एमबीबीएस वाले भी कर रहे हैं, तो ये है। और लर्निंग नेवर एंड्स, तो सिंपल फंडामेंटल एमडी के बाद भी आई बिलीव करना तो चाहिए कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। So like what your advice for those medical students like who are like interested in creative field, मतलब कि अगर उनको इनके साथ वो काम भी करना है तो क्रिएटिव फील्ड, पहली बात तो यू शुड हैव ऑलवेज बैकबोन, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड्स जो होते हैं ना वो अनसर्टेन होते हैं। I keep visiting Mumbai and I have seen number of authors, some number of aspiring directors, producers, actors, जो लोग आते हैं लेकिन सरवाइव नहीं कर पाते बिकॉज उनके पास बैकबोन नहीं होता, exactly. और इट्स रियली डिफिकल्ट। क्योंकि एमबीबीएस में एंट्री है तो एग्जिट है, लेकिन कोई भी क्रिएटिव फील्ड में एंट्री है तो एग्जिट नेसेसरी नहीं है, राइट? तो बैकबोन होना चाहिए, एक सॉलिड बैकबोन होना चाहिए कि यू कैन सर्वाइव, यू कैन जो अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन आएगा और छोड़ के भाग जाओगे तो आपका पैशन अधूरा ही रह जाएगा। तो गो विथ प्रिपरेशन, गो विथ बैकबोन, और डिटेल में एनालिसिस करके अच्छे से सीखना पड़ता है। कोई भी राइटिंग है तो कुछ नया लिखो, फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो छोटी छोटी चीज ही बना सकते हो, मोबाइल से भी सब कुछ बन सकता है आजकल, तो जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। तो हाँ, परस्यू तो करना चाहिए, आई ऑलवेज मोटिवेट कि करो, अगर इंटरेस्ट है तो करो। मेरी जो कॉलेज में जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमें शॉर्ट फिल्म बनानी तो बनाओ, थोड़ा आइडिया देता हूँ, गाइड करता हूँ, मोबाइल से बनाते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं मजा आया, बट कोई नहीं, सीखने को तो मिला। धीरे धीरे इस इंसान सीखता है ना, डायरेक्ट तो कोई स्टीवन स्पीलबर्ग नहीं बनेगा। स्टीवन स्पीलबर्ग ने भी छोटी फिल्म बनाई थी, जेम्स कैमरून ने भी छोटी फिल्म बनाई थी, क्रिस्टोफर नोलन की अगर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म देखो आप तो पता चलेगा कि क्या उस टाइम से भी वही ऐसे ही सोचता था जो हम इंटरस्टेलर में देखते हैं, इंसेप्शन में देखते हैं। बट यूएसपी होना चाहिए, ऐसा लिखो जो तुम्हारे सिवा कोई लिख ही नहीं सकता, एक यूएसपी होनी चाहिए। So like what can we expect in future about new books or movies? हाँ, बस आई एम स्ट्रगलिंग टू पेनेट्रेट बॉलीवुड राइट नाउ एज अ स्क्रीन राइटर। चीजें चल रही है, बात चल रही है। मेरी मर्डरम जो नॉवेल है उसके राइट्स तो मैंने सोल्ड आउट कर दिए है, मेरे पास प्रोड्यूसर भी है, वी आर लुकिंग फॉर ओटीटी, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, और भी 2-4 स्क्रिप्ट्स की बात चल रही है, वंडर वुमन या की भी एक जगह पे बात चल रही है। बट जब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं है तब तक कुछ कहने के लिए है नहीं मेरे पास। बट राइटिंग मेरे चालू है, लाइक अभी मैं नेक्स्ट नॉवेल लिख रहा हूँ, ऑलमोस्ट डन है, क्लाइमेक्स पे वर्कआउट कर रहा हूँ। अगेन साइकोलॉजिकल थ्रिलर, इट्स अगेन मेडिकल फिक्शन। हमारी मेडिसिन साइकेट्री में एक डिसीज है स्किज़ोफ्रेनिया, उसके ऊपर है, एक दवाई है, नेम इज क्विटियापिन। क्विटियापिन की एक साइड इफेक्ट है स्लीप वॉकिंग, जो बहुत कम लोगों को होता है। क्विटियापिन अगर कोई इंसान 8-9 महीने खाता है तो उसमें से 1 in million केसेस में स्लीप वॉकिंग एज अ साइड इफेक्ट देखने को मिला है। इट्स डॉक्यूमेंटेड इन लिटरेचर एज वेल, आप गूगल करोगे आपको मिलेगा। क्विटियापिन कॉजेज स्लीप वॉकिंग, ये एक स्टेटमेंट हुआ।
or Indian Penal Code section 84 according, if anyone is under influence of any medicine, he or she is not liable for guilty. Okay. This is called NGRI, no guilty on the reason of insanity. इस सिचुएशन में दो मर्डर होते हैं, कौन करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, हु इज अगोनिस्ट और हु इज एंटागोनिस्ट, वो लास्ट की 5 मिनट पता चलता है. तो अगेन आई एम हाईली एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड फॉर दिस नो, बिकॉज ये एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है जो कहीं एक्सप्लोर नहीं हुआ पहले, और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है दिस आर समथिंग माइंड बेंडिंग. और जो जो लोगों ने मेरी प्रीवियस थ्रिलर नॉवल पढ़ी है उनको तो पता ही है कि मैं किस टाइप का लिखता हूँ. तो मैं, अगर आप गूगल करोगे तो मर्डरम के अराउंड 5000 रिव्यूज़ है गूगल पे, सब मिला के, गुड रीड्स वगैरह सब मिला के, अमेजोन मिला के, एवरेज 4.6 आउट ऑफ 5 है, 5000 रिव्यूज़ है. तो मर्डरम तो जो लोग पसंद कर रहे हैं तो वो लोग भी ये पसंद तो करेंगे डेफिनेटली, तो उनके लिए लिख रहा हूँ मैं. नेम तो भी मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, बट उसके बाद की भी रेडी है मेरे पास 15 स्क्रिप्ट्स पड़ी है. आई एम जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग माय स्क्रिप्ट्स इनटू नोवेल, और वो ही नोवेल जो भी लिख रहा हूँ उसकी पिचिंग भी चालू है प्रोड्यूसर्स के साथ. अगर मैं मुंबई होता तो डेफिनेटली मेरा 3-4 पिक्चर आ चुकी होती अभी तक, बट आई नेवर वांट टू क्विट माय प्रोफेशन, दैट्स व्हाई आई एम इन गुजरात एंड मैं मुंबई शिफ्ट नहीं हो रहा. बट धीरे धीरे होता रहेगा, कीप वर्किंग, कीप डिसिप्लिन होनी चाहिए, बस हो जाएगा. And what about the award you got, like Heroes of the? हाँ, वो तो सोनी यो ऐसा कुछ है, सोनी का एक टेलीविजन चैनल है, वो लोग Sony Live. हाँ, सोनी लिव का ही एक अवार्ड है. वो कुछ 10 लोगों को एवरी ईयर कुछ दे रहे हैं. तो उस 2021 में जब फोटो वायरल हुआ था तो उन लोगों ने हीरोज बिहाइंड हीरोज, वो सोनू सूद है, फिर 2-4 लोग और है, इनमें 5-6 लोगों को इस टाइम पे. तो आई रियली अप्रिशिएट कि थैंक यू सो मच कि उन लोगों ने इतना नोटिस किया अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया. फिर एक और अवार्ड भी था, क्या नाम था, आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड, वो भी उन लोगों ने क्लब करके दिया था, कुछ बुक्स का, कोरोना का, सब का. तो वो तो होता रहता है लाइफ में. अगर आप काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो धीरे धीरे होता रहेगा. इफ यू आर, बट क्यों हो रहा है उसका रीजन यही है कि माय प्रोफाइल इज डिफरेंट. तो बस यही फंडामेंटल है. अगर आपकी यूएसपी कुछ यूनिक बन रही है तो यू विल डेफिनेटली हाईलाइटेड जो अक्रॉस बहुत सारे डॉक्टर्स. अदरवाइज अब मेरा फोटो वायरल हुआ, उसके पीछे भी कुछ सीक्रेट हो गए. बीइंग फोटोग्राफर, जो लोग अगर उसको एनालिसिस करेंगे तो उनको आइडिया भी आएगा कि वो फोटो क्यों वायरल हुआ. नंबर ऑफ फैक्टर्स. मैं एक मेरी नॉवल लिखने वाला हूँ, मेरी एक स्टोरी खुद, लेकिन मैं उस थोड़ा फेमस होगा तब रिलीज करूंगा. उसमें मैंने सब चीज़ें डिस्क्राइब की है, मेरी जर्नी फ्रॉम एमबीबीएस टू वायरल मेडिसिन. माय बुक पूरा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है. ये मैंने जो कहा वो तो सिंपल बोल दिया, बहुत सारी जिगजैग है मेरी लाइफ में भी. तो लेकिन वो 8th और 9th नॉवल मेरी होगी, 2-4 फिल्म में आ जाएगी, लोग मुझे जानेंगे तब मैं रिलीज करूंगा. लिखी है, रेडी है, मैं पूरा का पूरा लिखा हुआ है. वो मतलब पूरा स्टार्टिंग से एंड तक का ही हाँ. क्या सब कुछ था. अराउंड 300 पेजेस की नॉवल है वो. ओके. लेकिन बहुत जिगजैग बहुत है. तो बायोपिक तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, ये इंटरवल भी नहीं है अभी तो. बट सबको होता है ना, मैं वायरल का चक्कर हो रहा है, तो चलता है. इट्स लाइफ, लर्निंग एंड गोइंग स्मूथली. Okay, so thanks for Thank you your so time much. and thanks for this great opportunity. अरे वाह. नहीं, it's my pleasure. Thank you so much, It's our pleasure also, sir, to having you with us. अरे thank you so much. It's my pleasure. And thank you so much, Dr. for inviting me. Such a pleasure of mine कि I'm sitting in front of you and all other colleagues of yours. मजा आया, great time. And जो भी आपके followers है, mostly health sector वाले हो गए, तो we health sector will have outstanding future. बहुत सारे, अभी तो AI में भी बहुत रिक्वायरमेंट है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विथ मेडिसिन, विथ, अगर किसी को मेडिसिन का नॉलेज विथ AI का नॉलेज, और AI तो मस्ट है हर एक के लिए. अगर आप AI नहीं सीखोगे तो आपका फ्यूचर 50% ब्लंट हो जाएगा. AI आपका फ्यूचर नहीं लेगा.
दोज हु नो एआई विल रिप्लेस यू। तो ये फंडामेंटल है। और आफ्टर 20 इयर्स अगर देखोगे तो पूरी हेल्थ सेक्टर की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अ नंबर ऑफ रिसर्च आर गोइंग ऑन एंड एक्सरे वेक्सरे तो मोबाइल में हो गए सबके। और शायद आई एम नॉट रॉन्ग 2050 तक तो लोगों को डिसीज भी नहीं होंगे एक्सेप्ट इन्फेक्शियस डिसीज। और वो इन्फेक्शियस डिसीज ही मारेंगे लोगों को, क्योंकि जिस तरह से हम एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं ना,